So hello everybody, here we are with this amazing class of Unstoppable Academy. This is day 45 and this is the half of the syllabus I can say right now that has been covered. Okay, 90 days challenge we have right now, and ultimately this is day 45. So ultimately most of the days, I mean half of the days have already been covered. So that is just an awesome thing. Congratulations. आगे बढ़ते हैं. These are the topics which we have covered so far. Simply revise all these topics and these are the important ones. Talking about the topics, there are many topics which we have discussed, which we have learned, but these are some of the important ones. Okay, so just keep revising them over and over, keep practicing them if you get time. Nothing could be better than this. We have covered prepositions, we have covered WH questions, like how to translate any question into English. Simple. Okay, and at last we covered the use of there, and from this particular point we can say that beginner to intermediate level is done. Right now what you have to do, simple, keep revising all the topics. Yesterday I gave you a topic and that was daily routine. You guys had to recite your daily routine in present and past tense. Yes or no? Yes, sir. Okay, so get ready for that thing. I'm mainly gonna be asking Pushpanjali over here to recite her daily routine in past tense. Like what did she do yesterday? What did you do yesterday? Come on, go ahead. Okay. Go on. I woke up in the morning at 5 o'clock. Then I went in the washroom. Okay, Then into the washroom. alright. Then I frozen up होगा. Freshen up, Get freshen up. got frozen. That is freshen up. पर Okay. प्रेजेंट में भी तो होता है ना. उसका से एडी लगा देना. फ्रेशन अप मतलब होता है फ्रेश होना. Go on. I freshen up. Then I got ready for walk. Then I went to walk. After that I came back my home. Then I get ready. I got ready. I got ready for school. Then after that I had my lunch, had my lunch, Okay. had my breakfast. Then I went to my school. Mhm. Then then I came back my classroom. Then after that I came back my home Okay. at 4 o'clock. Then I freshen up. Then I did my homework. Then I played in the ground. Then I cooked the food with mom. Okay. Then Alright, Pushpanjali, thank you very much. This was really great. In this way, you have to just keep practicing. Most of the things are already correct. That means you have been practicing a lot. And the good thing is that I have seen you guys practicing in the group really a lot. And that is the best thing. Whichever amount of time you had, you have utilized that in the best way possible. So congratulations for that. Jay, are you also practicing in the groups? yes, sir. Like, are you talking on a daily basis or not? Do you talk daily? Do you practice talking daily or not? Sir, voice chat. Yeah, that is what I'm saying. Voice chat, which means on voice chat you talk to people, yes or no? Yes. So do you talk to people daily or not? Daily no. No daily. You have to talk daily, Mr. J. You have to work on your fluency. Learning is altogether different thing. When you start speaking, at that time you will realize that okay, this is the topic that I need to work on. This is the topic I'm weak at. So I need to get myself better at this particular topic. So you start speaking, the more you speak, the better it will be, and apart from that, keep learning. So I can say right now, after completing this level, beginner level, 50% speaking and 50% learning. Keep in mind, the ratio should be there in your mind. Is that clear? Yes, sir. If you can maintain this particular thing, everything will be alright. But without speaking, you can never speak. So start that, that is a must.
Okay, by the way, let's go ahead talking about this. The topic today, not topic actually. Jay, you have to recite your daily routine. Go ahead with that in past tense. I woke up early in the morning. Then I then I went to washroom. Then I washed my face. Then I washed my face and I go to my room. I went to my room and Yeah, go on. That's great. Keep it up. पोछ क्या कहते हैं? हाँ, पोछने को पोछना, दैट मीन्स ड्राई. आपने अपनी बॉडी को पोछा होगा तो आई ड्राइड. वाइप मतलब वैसे मेनली पोछना होता है, बट आप यहाँ पर सुखाने की बात कर रहे हो, राइट? मैंने अपना मुंह पोछा, मतलब मैंने अपना मुंह सुखाया, तो आई ड्राइड माई फेस विद अ टॉवेल. ओके, I dried my face with the towel. Then I went to freshen up. okay. Then I take a bath. Then I took a bath. Took a bath. Then I did yoga. Okay, that's great. Then I got ready to go to school. Okay, Then I eat a breakfast and Got ready? for going to school. okay, that's superb. In this way, you guys have to just keep practicing at home. I can't really listen to your daily routine the whole all, because of course we have to cover those topics as well as we have to practice. But the way you are saying, that is absolutely right. The thing is that you need to work harder on it. Or you guys can do one thing. If you have a mobile, you can just simply go to ChatGPT and you can say to him that I wanna practice my daily routine. I'm going to tell you my daily routine and tell me the mistakes I'm making at the end. Okay? Yes. Simple thing. Simple. Go to ChatGPT. Ask him to listen to you. You are reciting the way you are reciting right now. The same way you will recite over there. ChatGPT will listen to you, and at the end of your daily routine and at the end of any topic, ChatGPT will tell you, okay, here you made a mistake. This is how you can correct the mistake, and in this way you can go ahead. All right? Yes, sir. And Pushpanjali, the same thing you can do, but unfortunately you are going today. That's all right. Never mind. You will get the I think chances to practice later on too. But even there, you just keep practicing if you get some friends. Or try to make a group over there too, so that you can just keep practicing English. It would be better. Otherwise, you will forget everything. Okay, let's go ahead. Right now, what we are gonna do, I'm gonna ask questions and you guys have to answer them. Did you get that? Yes, sir. Just few questions, not many, so that you can just keep all the topics in your mind. Alrighty. The very first question in that's gonna be like, क्या तुम सो रहे थे? Are you sleeping? Not really, not really. क्या तुम सो रहे थे? Were you sleeping? Were you sleeping? अरे भैया हम पास की बात करते हैं. तो क्या तुम सो रहे थे? Were you sleeping? तुम कहाँ सो रहे थे? Where were you? Where were you sleeping? Where were you sleeping? Okay. तुम कब मुझसे मिलोगे? When will You meet me. When will you meet me? और अगर मैं बोलूँ तुम कब फिर मुझसे मिलोगे तो when will you meet me again? Is that clear? Yes. Something like when will you meet me again? तुम मुझसे कब फिर मिलोगे? हमने बहुत मजा किया. हमने बहुत मजा किया. I have a lot of fun. अरे हमने we enjoyed a lot. ठीक है ना? या तो बोलो we had a lot of fun. We had a lot of fun. आपने पास्ट में किया तो had लगाओगे. या तो बोल दो we enjoyed a lot. अच्छा, वर्क की फॉर्म्स बनते हैं ना कि भैया एंजॉय को अभी तक याद नहीं किया तो उसमें ईडी लगा दो. ठीक है ना? हाँ, तो वर्क की फॉर्म्स में दिक्कत नहीं आनी चाहिए. अगर फिर भी दिक्कत है तो आप सिंपल प्लेलिस्ट में जाना, हाउ टू लर्न वर्ब्स, एंड उसका रिवीजन कर लेना. दैट इज अ सिंपल थिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट्स गोना बी लाइक, क्या तुम मेरा मोबाइल रिपेयर कर सकते हो? Can you repair my mobile? ओके. कैन यू रिपेयर माई मोबाइल? क्या तुम मेरा मोबाइल रिपेयर कर सकते हो? दैट्स ऑसम. क्या तुम मेरा मोबाइल रिपेयर करवा सकते हो? कैन यू गेट माई मोबाइल रिपेयर्ड? ध्यान देना.
जब नेम ना हो, सिंपल, क्या तुम मेरा मोबाइल रिपेयर करवा सकते हो, किससे करवाओगे मुझे नहीं पता, वहां पर गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे, तो कैन यू गेट माई मोबाइल रिपेयर, इज दैट क्लियर? ओके, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है एंड दैट्स गोना बी लाइक तुम कैसे रो सकते हो? How can you weep? हाउ कैन यू Weep. वीप, तो हाउ कैन यू वीप, तुम कैसे रो सकते हो, तुम कैसे मुझे रुला सकते हो? How can you make weep? हाउ कैन यू, Make सॉरी, हाउ कैन यू मेक मी वीप, मेक के बगल में डायरेक्टली वो नाम आएगा, तो हाउ कैन यू मेक मी वीप, तुम मुझे कैसे रुला सकते हो? तुम कैसे खाना बनवा सकते हो? तुम कैसे खाना बनवा सकते हो? get the food. हाउ कैन यू गेट द फूड मेड या तो कुक्ड, इज दैट क्लियर टू यू? वेल दिस इज हाउ यू गाइस हैव टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस। जब से बारिश हुई है मैं घर पे बैठा हूं, जब से बारिश हुई है मैं घर पे बैठा हूं, बनाओ बनाओ बनाओ। आई हैव बीन सिटिंग, ध्यान देना, मैं बोल रहा हूं जब से बारिश हुई, अगर मैं बोलूं मैं घर पे बैठा हूं, आप बोलोगे आई एम सिटिंग एट होम, आई एम सिटिंग एट होम, मैं घर पे बैठा हूं, बट लिसन टू द क्वेश्चन प्रॉपर्ली, जब से बारिश हुई है तो किसी समय से के लिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो आई हैव बीन सिटिंग एट होम, Been sitting at home. आई बीन सिटिंग एट होम, जब से बारिश हुई, इसको क्या बोलोगे? जब से बारिश हुई, I forgot. यू फॉरगॉट, अरे जब से बारिश हुई, अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कोई सेंटेंस है तो सिंस से तो फॉर ही लगेगा, जब से बारिश हुई पॉइंट ऑफ टाइम की बात करो इसलिए सिंस लगेगा, तो सिंस इट रेन्ड, इज दैट क्लियर? दिस इज हाउ यू गो अहेड। तो सिंपल सी बात है, जब से बारिश हुई मैं घर पे बैठा हूँ, तो अल्टीमेटली मैं घर पे बैठा तो आई बीन सिटिंग एट होम आपने बोल दिया, जब से बारिश हुई ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आप सिंस के यूज करते हो, तो जब से के लिए सिंस का यूज हो गया, और इट रेन्ड लगा दे क्योंकि पास्ट में कोई भी काम होता है सिंपल पास्ट में बनता है, यस और नो? Yes, sir. ओके, दिस इज हाउ यू हैव टू गो। एंड सिमिलरली इफ आई कैन से लाइक जब से मैं आया तुम मुझे क्यों देखे जा रहे हो, जब से मैं आया तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? Why are you watching me? अब देखो अगेन सेम मिस्टेक आप कर रहे हो, वॉच तो चलेगा ठीक है, आपने वॉच लगा दिया वो तो चलेगा, वर्ब नहीं पता, दैट्स ऑल राइट, लेकिन अगर सेंटेंस बनाने में दिक्कत आ रही है बीच में से आपको रिवीजन करने की जरूरत है। मैंने ये नहीं बोला कि तुम मुझे क्यों घूर रहे हो, अगर मैं सिर्फ इतना बोलूं कि तुम मुझे क्यों घूर रहे हो, आप बोलोगे वाई आर यू स्टेयरिंग एट मी, स्टेयर मतलब होता है घूरना, तो वाई आर यू स्टेयरिंग एट मी, ये पहला सेंटेंस हो गया, लेकिन मैंने ये सेंटेंस नहीं दिया सर, मैंने कहा कि जब से मैं आया तुम मुझे क्यों घूर रहे हो, तो तुम मुझे किसी समय से घूर रहे हो, तो क्या बोलोगे? वाई हैव यू बीन Have you been staring at me staring at since I came, is that clear? Sir, या staring के बगल में at क्यों लगा? स्टेयर के बगल में ऐड लगा, कुछ वर्ड्स मैं देता हूँ, देता क्या आपको मैं बता देता हूँ कहाँ पर है, ये तो ऐड कर देता हूँ अभी, ये बिगनर लेवल पे आपको वर्ड मिल जाएंगे जब आप टेंस वाले सेक्शन पे जाओगे, ओके? Sir, I got it. You got it there? Okay, that's really awesome. By the way, let me go through those verbs. Preposition से पहले ही tense आया था actually. Alrighty, here we are, just nearby. Talking about those verbs right now, maybe that is a must, so that you guys can keep them in mind. And here they are. These are some verbs which you have to keep in mind. These are pretty much easy peasy ones, so you don't need to worry about them, but you have to keep them in mind. So here we are. Add to the current page. ये सारी verbs हो गई जिनको आपको याद कर लेना है, laugh at, look at, wink at, stare at, gaze at. Ultimately talking about the meanings. हाँ, wink मतलब होता है आंख मारना. So कुछ verbs हैं जैसे laugh को पता है, look पता है, wink का मतलब होता है आंख मारना, आंख मारना, एंड गेज और स्टेयर दोनों का मतलब होता है घूरना. आप किसी का भी यूज कर सकते हो, शाउट चिल्लाना, बाकी सारे आसान है, सिंपल है. ऑलराइट, सो इस तरीके से आपको सेंटेंस को ट्रांसलेट करना. द बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ, द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग कि कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आप अंतर अभी नहीं कर पा रहे हो, ठीक है ना. यू आर अनेबल टू डिफरेंशिएट लाइक विच पर्टिकुलर सेंटेंस बिलोंग्स टू कॉन्टिन्यूअस टेंस, which particular sentence belongs to perfect continuous tense. For that thing, whenever I tell you the sentence, you have to keep in mind whether I am talking about just the sentence, the continuous action that is going on, or I am talking about the continuous action that has started in past and still going on. Is that clear?
Yes. I spoke in English. I hope you got understood. In Hindi, I will simply say कि कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस वो होगा जिसमें आपका एक्शन चल रहा है, एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक्शन वो होगा जिसमें काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है. इज दैट क्लियर? यस सर. तो उसमें किसी समय से लग जाएगा और उसको आपको ध्यान देने से कुछ नहीं होगा सर. कि एक बार आपको पता चल गया कि अगर मैं बोलूँ कि सपोज जब से लाइट आई मैं टीवी देख रहा हूँ, आपको पता चल गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है, लेकिन फिर भी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा. फॉर दैट थिंग you need to practice that particular thing. Is that clear? And talking about this topic, ये topic again, ये since वाला for वाला topic उसी में tense में ही covered है. This is the topic that I'm talking about right now. अगर आप इस topic की practice कर ले तो examples आपको नीचे मिल जाएंगे. Then all the things are gonna be clear to you. Propose के बगल में हमेशा to use होता है, तो since she proposed to me होगा, यहाँ पर एक mistake है. I'm so sorry for that. Okay, let's go ahead. And the next question for you guys, that's gonna be like राम मुझे क्यों नहीं पढ़ने दे रहा है? राम मुझे क्यों नहीं पढ़ने दे रहा है? Why? Isn't Ram? अच्छा, why isn't Ram studying? राम क्यों पढ़ रहा है? सॉरी, राम क्यों नहीं पढ़ रहा है? Again repeating. राम क्यों नहीं पढ़ रहा है? Why isn't Ram studying? लेकिन राम मुझे क्यों नहीं पढ़ने दे रहा? जब भी किसी कोई काम करने दोगे वहां पर let as a main verb use होगा. तो why? Isn't Ram letting Why me isn't study? Ram letting me study? And these are important ones. Just practice them well enough. Not a difficult topics anymore. Like अगर मैं सिंपल बताऊं तो अगर कहने के लिए कहते हो तो ask लगा दो मेन वर्ब के तौर पर ask to, और मना करते हो तो forbid लगा दो. ये मेन बता रहा हूँ, ठीक है ना? बाकी सब तो आपको आसान याद ही होंगे. तो अगर कोई काम करने के लिए कह रहे हैं तो ask to लगेगा, करने से मना कर रहे हो तो forbid to लगा दो, ठीक है ना? करते रहते हो तो कीप लगा दो, कीप या तो कीप ऑन लगा दो, दोनों चलेंगे. करना शुरू करते हो तो स्टार्ट लगाओगे, सिंपल सी बात है. या तो वहाँ पर बिगिन टू का भी यूज कर सकते हो आप. करना छोड़ देते हो तो गिव अप लगाओगे, या तो क्विट लगा सकते हो. एंड देन अधिक पसंद करते हो तो वहाँ पर प्रीफर लगाओगे. सपोज दो ऑप्शंस आपके पास है, मैंने बोला बताओ भैया चाय लोगी कॉफी, तो आप कहते हो आई वुड प्रीफर कॉफी, मैं कॉफी प्रीफर करूंगा, समथिंग लाइक दैट. काम करने देते हो किसी को, वहाँ पर लेट लगाओगे, ठीक है ना? और ग्रुप में काम करते हो जब कहते हो चलो चलें, चलो आए, चलो खेलें, वटेवर, वहाँ पर लेट्स का यूज करोगे. और जब किसी से कोई काम करवाते हो वहाँ पर मेक का यूज करते हो, सिंपल सी बात है. तो ये सारी थिंग्स है जिनको आपको ध्यान रखना है. ओके, एंड दीज आर अगेन द इम्पोर्टेंट, रियली इंपॉर्टेंट वंस. अगर आपने इतना भी ध्यान रख लिया, इट्स जस्ट गना बी सुपर्ब, बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा. तो इसको थोड़ा मैं अरेंज कर देता हूँ. दीज आर द थिंग, इनको बस रिवीजन करना. वैसे तो वर्ब बहुत सारी हैं, आई होप यू गॉट द आइडिया, बट ये मेन है जिनको आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू हैव अ गुड कमांड. सिंपल. ऑलराइट, सो दीज आर द स्पेशल वर्ब्स. इन सबको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना. तो मैंने बोला कहीं पर भी किसी से कोई काम करवाओगे लेट के यूज करोगे. जैसे मैंने बोला देखो भैया राम को जाने दो, क्या बोलोगे? लेट राम को जाने दो, लेट राम को. मैंने बोला राम को मत जाने दो, राम को मत जाने दो. Don't let Ram go. डोंट लेट राम गो. यहीं पर अगर मैं बोलूं कि इसका एक और तरीके से निगेटिव बना सकते हो तो बोलो डोंट लेट राम गो, या तो लेट राम नॉट गो. इज दैट क्लियर? तो ये पर्टिकुलर सेंटेंस दो तरीके से इसका निगेटिव बन सकता है. अगेन इसको भी मैंने कवर कर दिया. तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, रिवीजन कर रहा हूँ, सब कुछ कवर कर दिया. ऐसे मैं बोलूँ कि भैया देख भैया मुझे टीवी देखना है, I have to watch TV. आई हैव टू वॉच टीवी. सेम सेंटेंस को और किस तरीके से बोल सकते हो? ये तो पहला तरीका हो गया. और बताओ और क्या तरीका? आई हैव टू वॉच टीवी, आई एम टू वॉच टीवी, आई एम टू वॉच. तो अल्टीमेटली हैव टू, हैज टू, एंड या तो वर्ड से कर सकते हैं इज, एम, आर, टू. इनमें भी अंतर आपको पता होना चाहिए कि दोनों में अंतर क्या है, ठीक है ना? ऐसे करके आपको बहुत सारे. ऐसे मैं बोलूँ हैव टू हैव का मतलब क्या होता है? हैड टू हैव का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट वर्ड से मॉडल्स में हैव टू हैव, हैड टू हैव. हैव टू का मतलब पढ़ता बोल सकते हो, पढ़ता है. हैव टू भी होना पड़ता है. हैव टू हैव पास होना पड़ता है. सिंपल. अरे पहले वाले का देखो, हैव टू का मतलब हो गया पढ़ता है. हैव टू भी लगा दूं तो उसका मतलब हो जाएगा होना पड़ता है. और हैव टू हैव मतलब पास होना पड़ता है. और ऐसे हैड टू हैव मतलब पास होना पड़ता था. लेकिन इस तरीके से हम ज्यादा बोलते नहीं. हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि मेरे पास एक कार होनी पड़ती है, ठीक है ना? अजीब सा सेंटेंस है. तो वहां पर फिर इसको बोलने कैसे वाले हो? मेरे पास एक कार होनी पड़ती है मतलब आप अपनी मजबूरी बता रहे हो. आप बोल सकते हो मेरे पास एक कार होनी चाहिए. यहाँ पर भी ये बोलकर भी आप अपनी मजबूरी बता सकते हो. तो यहाँ पर स्पेशल केस है. हैव टू हैव का मतलब होता है पास होना चाहिए, स्पेशल केस, ठीक है ना? चाहिए.
एंड हैड टू हैव का मतलब पास होना चाहिए था, पास होना चाहिए था। सर ये हमने कहाँ कवर किया है, आराम से बिगनर लेवल पे जाना। चलो यहीं पर मैं दिखा देता हूँ आपको। जब थोड़ा पीछे जाओगे डेली मैं जो देता हूँ आपको, तो यहाँ पर कुछ मिलेगा आपको जो हमने पहले कवर किया था। हैव टू हैव, हैज़ टू हैव, पास होना चाहिए, हैड टू हैव, पास होना चाहिए था। जहाँ पर यूज टू का यूज होगा वहाँ पर वुड का यूज कर सकते हो। जब पॉसिबिलिटी की बात करोगे वहाँ पर कैन और कुड दोनों का मतलब हो जाएगा सकता है। इज द क्लियर? अगेन ये सारा का सारा हम पहले कवर कर चुके हैं, बट ध्यान देना सर कवर करने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एज अ टीचर आई कैन जस्ट टीच यू इन द ईजीएस्ट वे पॉसिबल। इस तरीके से पढ़ा सकता हूँ कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए समझने में। एट द एंड एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस आपको ही करना पड़ेगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। सो दीज आर द थिंग्स इन दिस वे यू हैव टू जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग एट होम। एंड वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, एंड दैट्स गोना बी लाइक, क्या राम तुम्हारा दोस्त हुआ करता था? Did Ram used to be your friend? Is that clear? Yes. तो did Ram used to be your friend, जो मॉडल्स है कभी भी अकेले नहीं आते, मतलब उनके बगल में वर्ब लगाना पड़ेगा। मतलब used to के बगल में आपको कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, वर्ब आएगी। अब यहाँ पर होने की बात, और वर्ब कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार। मेन वर्ब या तो टू बी होगा, मेन वर्ब या तो टू हैव होगा, मेन वर्ब या तो टू डू होगा, काम खत्म। अच्छा हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, टू बी टू हैव टू डू। यहाँ पर अगर हम मेनली मेन वर्ब की बात करूँ तो टू बी टू हैव टू डू हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, टू बी टू हैव और टू बी मेन वर्ब भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं सिर्फ मेन वर्ब की बात करूँ और बताओ मेन वर्ब कितने प्रकार की होती है, तो वो 3 ही प्रकार की हो सकती है। या तो टू बी होगी, या तो टू हैव होगी, या तो टू डू होगा, मतलब कोई ना कोई एक्शन होगा। सिंपल टॉकिंग अबाउट द मेन वर्ब ओवर हियर। तो जब भी मैं कहूँ कि बताओ भैया मेन वर्ब क्या है इस सेंटेंस में, तो आपको सोच लेना, सिंपल सी बात है। मेन वर्ब कि अच्छा मेन वर्ब कोई काम हो रहा है क्या? काम नहीं हो रहा। तो जब काम नहीं हो रहा तो अगर टू डू नहीं तो फिर टू बी और टू हैव में से ही कोई ना कोई हो जाएगा। सिंपल है। Alrighty, so this was it. Right now we are gonna be going through the topic. What time is it? Let me have a look. Alrighty. Oh, I didn't realize that. Come on, you got to be kidding me. चलो रिवीजन ही करते हैं 2-3 मिनट और। I'm sorry, I didn't realize that अभी एक टाइम खत्म हो गया। 20 में मुझे छोड़ना पड़ेगा आप लोगों को। So you can let me know about any topic जिसमें आपको confusion हो, so that उसको हम कवर कर लें। इस टॉपिक को मैं कल से कवर करूंगा, स्टार्ट करूंगा। ओके क्रेजी यार, आई डिडंट रियलाइज लाइक ओके टाइम तो जा रहा है। ओके डोंट वरी, आई विल बी कवरिंग दिस टॉपिक। अभी मैं इसको ऐड कर दिया हूँ, आप ट्राई करना इसका रिवीजन करने का, ट्राई करना अलग से देखने का कि एग्जैक्टली कैसा ये टॉपिक है, क्या क्या हो रहा है इसके अंदर, ठीक है ना। और कल मैं इसको डिटेल में कवर कर दूंगा। पुष्पांजलि को पहले से आइडिया होगा, यस और नो? Yes, sir. Okay, that's really awesome. You have to just practice examples. Even I have taught this topic to Jay too. If you guys have any confusion to any particular topic, you can let me know. Otherwise, in this way, we'll just keep going ahead. किसी preposition में दिक्कत हो तो बता दो। No, sir. No. तो अगर prepositions की मैं बात करूँ तो Sir, सिंपल sir. हाँ Hi. है, हाँ कहाँ है? Beside, apart from. हाँ बहुत बहुत आसान, बहुत आसान। चलो कवर करते हैं। देखो क्या होता है कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, पहला हो गया बी साइड नहीं होता, बी साइड्स होता है। बी साइड मतलब होता है बगल में, क्या होता है? बगल में। बी साइड्स मतलब होता है जब आप इंक्लूड करते हो। और हो गया एक्सेप्ट। तो देखो हिंदी मीनिंग तो भूल ही जाओ कि हिंदी में क्या कहते हो। जब आप किसी चीज को इंक्लूड कर रहे हो, इंक्लूड मतलब जोड़ रहे हो, ठीक है ना, वहां पर बी साइड का यूज कर दो। और जब आप एक्सक्लूड कर रहे हो, उसे छोड़ रहे हो, वहां पर एक्सेप्ट का यूज कर दो। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल, जैसे मैं बोलूं कि मैं संडे के अलावा हर दिन पढ़ाता हूँ। जब इमेजिन करो कि मैं संडे को सपोज नहीं पढ़ाता हूँ, ठीक है ना, और मैं कहता हूँ कि मैं संडे के अलावा हर दिन पढ़ाता हूँ, तो वहां पर एट दैट टाइम आई विल से आई टीच एवरी डे। अच्छा 2 संडेज दे रहा हूँ। आई टीच एवरी डे बिसाइड्स संडे एंड आई टीच एवरी डे एक्सेप्ट संडे। दोनों में अंतर क्या है? Besides means besides इसको भी संडे के दिन भी मैं पढ़ाता हूँ। exactly. But except means संडे के अलावा मैं हर दिन पढ़ाता हूँ। Exactly, simple. That is the simple thing. तो जब अगर besides यूज करते तो वहां पर आप इंक्लूड कर रहे हो, सिंपल सी बात है। तो beside यूज करोगे तो इंक्लूड करोगे। ओके, if you are using beside you are including, and you are using except you are excluding that. So I teach every day besides Sunday मतलब संडे को भी पढ़ाता हूँ। And I teach every day I'm so sorry, every day
एक्सेप्ट संडे मतलब संडे को नहीं पढ़ाता, बाकी हर दिन पढ़ाता हूँ। इज दैट क्लियर टू यू? एंड Yes, जो लास्ट ऑप्शन आपका आता है कि बिसाइड और एक्सेप्ट दोनों की जगह आप अपार्ट फ्रॉम के यूज कर सकते हो, ठीक है ना? अपार्ट, वही समझ आ रहा मुझे। अरे ना वो कोई टेंशन नहीं। जैसे मैंने बोला 2 संडेज देता हूँ कि भैया मेरे पास तुम्हारे अलावा भी दोस्त हैं, ठीक है ना? मेरे पास तुम्हारे अलावा भी दोस्त हैं और मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई दोस्त नहीं है। पहला दोनों सेंटेंस में अलावा आ रहा है। पहला मेरे पास तुम्हारे अलावा भी दोस्त हैं, मतलब यहाँ पर तुम हो लेकिन उसके अलावा भी दोस्त हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पर अलावा आ गया पहले सेंटेंस में। दूसरे सेंटेंस में भी मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई दोस्त नहीं है, मतलब तुम मेरे दोस्त हो और तुम्हारे अलावा कोई दोस्त नहीं है, वहां पर भी अलावा आ रहा है ना? तो दोनों सेंटेंस में अलावा आ रहे हैं, चाहे आप होने की बात करो, चाहे इंक्लूड करने की बात करो, चाहे एक्सक्लूड करने की बात करो, दोनों में अलावा का यूज करते हो। ऐसे ही अपार्ट फ्रॉम का यूज दोनों की जगह कर दोगे। तो जहां पर जैसे बोलो कि आई टीच एवरी डे अपार्ट फ्रॉम संडे, तो आपके माइंड में क्लियर होगा कि अच्छा अपार्ट फ्रॉम का यूज किया तो यहाँ पर ये बिसाइड्स के लिए यूज हो रहा है कि एक्सेप्ट के लिए यूज हो रहा है। अब बात आती है पता कैसे चलेगा नेक्स्ट स्पीकर को जो सुन रहा है, तो वो कन्वर्सेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसकी बात कर रहे हो, आप छोड़ने की बात कर रहे हो कि या इंक्लूड करने की बात कर रहे हो, ठीक है ना? बट दोनों जगह अपार्ट फ्रॉम और बिसाइड की जगह आप इसका एक्सेप्ट बिसाइड की जगह अपार्ट फ्रॉम का यूज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? Simple. This is the simple thing. By the way, I wish I could explain it more, but as Jay have to go to the class, so I'll have to go to the school actually. I'll have to end the meeting right now. Thank you very much, everybody, and bye bye, Miss Pushpanjali. Yeah, No sir. yeah. Do you have any more confusion? No sir. You can let me know. Otherwise, Jay can leave right now if he wants. Like he has to go to school. And if you have any confusion, you can ask more. Yeah, tell me, what is that? सर Yeah, वो क्या कहते हैं, जो अलग से मीनिंग थी जिनमें प्रयोग बुद्ध का किया जाता है, और इफ चलो जी, आज आपको कंफ्यूजन जय आपको जब भी जब टाइम हो जाए आप लीव कर सकते हो। थोड़ा मैं यहाँ पर 10 मिनट्स 7 मिनट्स कंफ्यूजन के बारे में बात करूंगा, जस्ट 7 मिनट्स। या टेल मी प्रॉपर्ली पुष्पांजलि। गुड हैव हैड, ये सारे वो लगते हैं। आप मॉडल्स की बात कर रहे हो? यस सर सारे, ओके ओके, शायद बट एडवांस लेवल के। एडवांस लेवल के मॉडल्स की बात कर, दैट्स ग्रेट। ओके, टॉकिंग अबाउट द मॉडल्स ओवर हियर। यहाँ से आपके मॉडल की स्टार्टिंग होती है। ये सब कुछ मैं जल्दी कवर करने वाला हूँ, डोंट वरी एवरीबडी। बट अभी मेनली पुष्पांजलि के लिए मैं कवर कर रहा हूँ। ये सारे मॉडल्स हो गए बेसिक, ये तो पता ही है, ठीक है ना? इसके बाद यहाँ पर कहीं पर भी विल आ जाए वहाँ पर मे माइट मस्ट लगा दो, ये भी आपका डन ही हो गया, कोई टेंशन ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, कैसे किसी भी मॉडल के आगे बी लगा दोगे और हैव लगा दोगे तो होना और पास होना बताएगा, ये भी आपको क्लियर ही होगा, ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन? ओके, आगे बढ़। यहाँ पर मैंने हिंदी मीनिंग भी दे दिया, दैट्स प्रीटी गुड। आगे बढ़ते हैं। सिंपल सी बात है, इज एम आर का मतलब होता है होना। और मैं बोलूँ कि मैं घर पे होता हूँ तो मैं घर पे रहता हूँ, प्रेजेंट की बात हो रही है इसलिए इज एम आर का यूज हो जाएगा। मैं घर पे होता था मतलब हुआ करता था, तो इसलिए यूज टू बी है तो वुड बी का यूज करोगे। सिंपल। सर हाँ। मैं घर पे होता हूँ, मैं घर पे होता हूँ, समझ नहीं आ रहा। देखो सिंपल सी बात है, मैं घर पे होता हूँ। सपोज अभी बोले कि 10 बजे मैं घर पे होता हूँ, ठीक है ना? डेली आप कहते डेली 10 बजे मैं घर पे होता हूँ, तो अल्टीमेटली ऑन द डेली बेसिस जो प्रेजेंट होता है वहाँ पर 10 बजे आप घर पे होते हो। सो इसीलिए यहाँ पर आप फ्यूचर की बात नहीं करें, बस बता रहे कि भैया सिचुएशन की बात करें कि 10 बजे मैं घर पे होता हूँ, तो होता हूँ मतलब अभी प्रेजेंट की। और तुम देखो कुछ ऐसे कि 10 बजे मैं घर पे आता हूँ इसलिए तुम मुझसे मिलने आ सकते हो, अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हो कि देखो भैया प्रेजेंट में मैं 10 बजे जो 10 बजे होता है ना वहाँ पर मैं घर पे होता हूँ और तुम मेरे घर आ सकते हो मिलने के लिए, तो प्रेजेंट की बात कर रहे हो। ये सुनो, और प्रेजेंट में भी होने की बात कर रहे हो मतलब टू बी की बात कर रहे हो। सिंपल। और इसीलिए इज एम आर लग जाएगा, या जाए। ओके, एंड सिमिलरली अब बात करते हो होता था मतलब हुआ करता था। यहाँ पर वाज यूज नहीं करूँ क्योंकि वाज का मतलब होता है सिर्फ था कि मैं घर पे था तो आई वाज एट होम। लेकिन मैं घर पे होता करता था जब कोई काम या तो कहीं पर भी मैं किसी समय के लिए होऊंगा तो वहाँ पर यूज टू का यूज करूंगा। तो मैं घर पे होता था या तो हुआ करता था, यूज टू भी या तो वुड बी का यूज कर लोगे। एंड वह घर पे होता होगा या तो रहता होगा तो वहाँ पर वुड बी का यूज हो जाओगे, क्योंकि अगर अभी होता होगा, सपोज अब मैं बोलूँ कि राम अभी घर पे होता होगा मतलब अभी होता होगा, तो सिंपल सी बात है फ्यूचर के लिए तो विल के यूज करते हो, लेकिन जब वही फ्यूचर आगे प्रेजेंट के लिए यूज होता है तो वहाँ पर विल वुड बी कन्वर्ट हो जाता है। यस और नो? एंड दैट इज वाई वहाँ पर वुड बी का यूज हो जाएगा। तो ये सारा का सारा बहुत ही सिंपल है। ऐसे ये सेम चीज यहाँ पर
करता था, किया करता था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में तो ऐसे यस लगा दोगे। करता है, किया करता है के लिए मैं बोलूँ वह डांस करता है तो वहाँ पर बोल दोगे ही डांसेज, ये तो वह डांस किया करता है, प्रेजेंट की बात करें तो ही डांसेज। वह डांस करता था तो किया करता था, तो यहाँ पर चाहे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज टू वुड तीनों का यूज कर सकते हो। और करता होगा, किया करता होगा, ये स्पेशल केस है, वुड बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगती है, ठीक है ना। मैं बोलूँ तुम स्कूल जाते होगे, यू वुड बी गोइंग टू स्कूल, यू मे बी गोइंग टू स्कूल, यू माइट बी गोइंग टू स्कूल, यू मस्ट बी गोइंग टू स्कूल, कुछ इस तरीके से सेंटेंस बना दोगे। एनी कंफ्यूजन? थोड़ा इनका रिवीजन कर लेना, इट वुड बी बेटर। आगे चलते जो आपका मेन टॉपिक है, जहां पर आपको दिक्कत आ रही थी, एंड दैट इज दिस टॉपिक। जस्ट हैंग ऑन, दिस इज द टॉपिक दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रख लेना है कि जब आप एबिलिटी की बात करते हो वहां पर कैन का मतलब सकता है, कुड का मतलब सकता था, विल बी एबल टू का मतलब सकेगा। लेकिन जब आप पॉसिबिलिटी की बात करते हो वहां पर कैन, कुड, मे, माइट तीनों का मतलब होता है, चारों का मतलब सकता है। और पॉसिबिलिटी में ही कुड हैव, मे हैव, माइट हैव का मतलब होता है सकता था। इज दैट क्लियर? यस। ओके, कैन, कुड, मे, माइट के बगल में लगाओगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कैन, कुड हैव, मे हैव, माइट हैव के बगल में लगाओगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। रिक्वेस्ट करें तो कोई टेंशन नहीं, कैन, कुड, मे का यूज हो जाएगा, सकता है के लिए कोई टेंशन नहीं। बात करते हैं इसके बाद क्या याद करना है। पहले तो आप ऊपर वाला थिंग याद कर लिए। दूसरा याद करो कि अगर होना होगा तो बी लगेगा, पास होना होगा तो हैव लगेगा, करना पड़ता है तो हैव टू लगाओगे, कर रहा होना अगर एक्शन चल रहा है तो वहां पर बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी, एक्शन हो चुका है हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और एक्शन किसी समय से चल रहा है तो हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। इज दैट क्लियर? ये भी आपको चीजें पहले से आसान है। अब क्या करना है, दोनों चीजों को मर्ज करना है, जोड़ देना है। जैसे मैंने बोला हो सकता है, तो सकता है के लिए आपने लगा दिया कैन, और होने के लिए आपने लगा दिया बी, तो कैन बी, कुड बी, मे बी, माइट बी सभी हो सकते हैं, सिंपल। ऐसे ही पास हो सकता है तो कैन हैव, कुड हैव, मे हैव, माइट हैव। करना पड़ सकता है तो कैन हैव टू, कुड हैव टू, मे हैव टू, माइट हैव टू। तो सकता है के लिए आपने कैन लगा दिया, पढ़ने के लिए आपने हैव टू लगा दिया, सिंपल है। कर रहा हो सकता है, यहां पर देखते हैं तो लास्ट में सकता है तो आ गया, तो सकता है के लिए क्या लगाओगे, कैन लगाओगे, सिंपल। कर रहा हो सकता है तो बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लग जाएगी, सिंपल। इज दैट क्लियर? किसी समय से कर रहा हो सकता है, या टेल मी। जैसे एक एग्जांपल, मुझे तुम्हारी जरूरत हो सकती है। मुझे तुम्हारी जरूरत हो सकती है, तो लास्ट में आ गया सकती है, तो आई कैन, लास्ट में आ गया सकती है। अब वर्ब क्या है, वर्ब है जरूरत होना, जरूरत होने के लिए क्या लगाओगे, नीड, तो आई कैन नीड यू, सिंपल। इज दैट क्लियर? सॉरी, मॉडल नीड, मॉडल नीड है और मॉडल वर्ब भी तो है। नीड टू, नीड मॉडल है, लेकिन आपको पता होगा नीड टू एक वर्ब भी है, सो नो। अरे मैं मॉडल अभी दिखाता हूँ, यहाँ पर मैंने लास्ट में इसको भी डिस्कस किया था। वेयर इज दैट? लास्ट में जहाँ पर मैंने इनके एग्जाम्पल दिए थे, यहाँ पर डेयर टू, नीड टू मेन वर्ब भी होती है, और डेयर टू, नीड टू मॉडल वर्ब भी होती है। जब डेयर और नीड अकेले लग जाए और टू अगर उसके साथ लग जाए, या तो नीड के बगल में कुछ लगा दो, कोई व्यक्ति का नाम लगा दो, तो वहां पर वो मेन वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। So this is it, don't worry about it, don't take it easy. You can just revise the topics whenever you just get your mobile. And दो चीज़ों को जोड़ना मेनली सीख लो। हम अगर लास्ट में देख लो आता क्या है, और उसके बाद होना, पास होना, पढ़ता, कर रहा, कर चुका, या तो किसी समय से कर रहा। अगर इतना भी अगर आपने ध्यान दे दिया तो थिंग्स आर गोना बी इजी पीजी। ओके, ऑलराइट। स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, ये टॉपिक्स तो मैं कवर ही कर दूंगा इन फर्दर कमिंग क्लासेज इन डिटेल। सो इन फ्यूचर आप कभी भी रिवीजन कर सकते हो अगर मैं नहीं पढ़ा रहा हूँगा तो। अदरवाइज आई विल बी देयर, ठीक है ना। हाँ सर, या अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं देता जरूर। ओके, अगर मेरे पास पैसे होते, अल्टीमेटली आप कंडीशनल सेंटेंस की बात करें तो इफ आई हैड मनी आई वुड गिव यू। जब कंडीशंस की बात करते हो, हमारे पास 1 मिनट से कम है, जब कंडीशंस की बात करते हो तो हमेशा पास्ट में सेंटेंस बनाते हो, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओगे और उधर वुड लगा दोगे, और पास्ट की बात करोगे तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे। क्लियर है ना? सर इसकी रूल कहाँ लिखे हैं, मैं लिख लेती हूँ। के रूल अभी मैंने नहीं लिखा, बट जल्द ही मैं लिख कर आपको दे दूंगा, ठीक है ना। सर मैं इसी की सबसे ज्यादा बात कर रही थी। Okay, that's all right. I will be sending those rules to you. Don't worry about this particular thing. I will be adding that too. I will send that on WhatsApp very soon. Take care. Bye bye and have a great day now. We don't have a lot of time. Yeah. Bye bye.